اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں چینل کی مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، آج جمعرات کا دن ہے اور جمعرات کے دن اسی چینل پر لائیو بیان ہوتا ہے جس کو آپ ہزاروں کی تعداد میں سنتے ہیں۔ آج کے بیان کا بہت اہم عنوان ہے پیران پیر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی، ان کی تعلیمات اور امت کے نام ان کا کیا پیغام ہے، کیا سندیش ہے۔ اس بیان کو آپ اپنی پوری فیملی کے ساتھ ضرور سنیں اور اپنے دوستوں کو بھی اس بیان کے سننے کی دعوت دیں۔ ناظرین، ابھی پورا رات بھر کا سفر میں نے کیا ہوں، کل دن بھر بھی سفر کیا۔ میں ریاست مہاراشٹر کے پربھنی ضلع کے جنتور شہر میں گیا تھا۔ جنتور شہر میں اصلاح معاشرہ، ملک کی حالات اور عالمی فلسطین کے حالات پر میری تقریر تھی، مجھے بلایا گیا تھا۔ تحریک علماء ہند کی جانب سے یہ اجلاس بڑا کامیاب رہا اور ہزاروں جوانوں کا مجمع اس اجلاس میں شریک ہوا۔ جدھر دیکھو ادھر پبلک ہی پبلک تھی۔ یہ اجلاس انتہائی کامیاب رہا۔ مولانا تجمل احمد خان صاحب ملی نے صدارت فرمائی اور جمعیت علماء مراٹھواڑہ کے صدر مفتی کلیم بیگ صاحب ندوی نے قیادت فرمائی۔ قاری عبدالرشید صاحب، مولانا عیسیٰ خان کاشفی، مفتی عبداللہ حنان صاحب، مولانا زکریا تابش ملی، مفتی اطہر صاحب، مولانا سراج الدین ندوی اور مولانا انیس خان ملی، مفتی سید عثمان ملی، بڑی تعداد میں علماء کرام بھی اس اجلاس میں شریک تھے۔ میں نے ملک کے حالات پر بولتے ہوئے مسلمانوں کو مایوسی سے دور رہنے کی اپیل کی اور فلسطین کے لیے زوردار انداز میں وہاں پر فلسطین کی حمایت اور سمرتھن میں نعرے بازی بھی ہوئی۔ اسرائیل نیتن یاہو تباہ ہو اور جو بائیڈن تباہ ہو، ایسے نعرے بھی لگے، دعائیں بھی ہوئی۔ یہ اجلاس بے انتہا کامیاب رہا۔ ناظرین، اس وقت پہلی بڑی افسوسناک خبر غزہ اور فلسطین سے آ رہی ہے، جہاں اسرائیلی آتنکواد اور اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں سینکڑوں فلسطینی خاندان صفحہ ہستی سے مٹ گئے۔ 7 اکتوبر کو غزہ شہر کے علاقے الزیتون کی 3 منزلہ رہائشی عمارت کو اسرائیلی فضائی حملے میں نشانہ بنایا گیا تھا، جس کے نتیجے میں ایک خاندان کے 15 افراد اور 3 فلسطینی شہید ہو گئے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کے مطابق اس حملے میں عونی الدوس اور ان کی اہلیہ ابتسام، بیٹا عدیل، بہو اور 5 پوتے پوتیاں بھی شہید ہوئے ہیں۔ رشتہ داروں، پڑوسیوں اور امدادی ٹیموں کو ملبوں سے لاشوں کو نکالنے میں 6 گھنٹے سے زیادہ وقت لگا۔ خیر، 7 اکتوبر سے لے کر 30 اکتوبر تک کے تمام خبریں آ رہی ہے کہ اسرائیلی اور امریکی فوجیوں کے آتنکواد اور فضائی آتنکوادی حملے میں سینکڑوں فلسطینی خاندان صفحہ ہستی سے مٹ گئے ہیں۔ اور ابھی فی الحال کی میں آپ کو خبر بتاؤں کہ غزہ کا اتنا برا حال ہے کہ پانی کی شدید کمی
कमी वहां पर हो गई है। अब लोगों को, मासूम बच्चों को पीने को पानी भी नहीं मिल रहा है, जैसे करबला का सब मैदान अब गजा बन चुका है। लाखों फलस्तीनी बच्चों की पानी की कमी से मौत का खदशा मंडला रहा है और अब बमबारी से भी ज्यादा मौतें पानी की किल्लत से हो सकती है। ये खुद अक़वाम मुत्तहिदा यूएनओ की तंजीम यूनिसेफ के तर्जुमान का बयान आया है कि अब बमबारी से ज्यादा अमवात पानी की कमी और पानी की किल्लत से हो सकती है। दोस्तों, हजरत मौलाना शहाबुद्दीन कासमी साहब जो 3 सालों से उर्दू से इंग्लिश सिखाने के लिए कोर्सेज चलाते आ रहे हैं, इनका यूट्यूब चैनल भी है, गाइड टू लर्निंग इंग्लिश। अब वो 12 नवंबर से, यानी आज से 10 दिन के बाद 12 नवंबर से 3 महीने का एक नया कोर्स फिर शुरू करने जा रहे हैं। आप में से जो हजरात इंग्लिश सीखना चाहते हैं वो उनसे राब्ता करें। साथ ही उनकी अंग्रेजी सिखाने वाली किताब रहनुमाए अंग्रेजी भी छपकर आ गई है। अब आप ये किताब भी मंगवा सकते हैं। राब्ता नंबर 7666763529 और उनके यूट्यूब चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नाज़रीन, दूसरी बड़ी खबर आ रही है इजराइल को लेकर। जी हां, मैं शुरू दिन से कह रहा हूं कि दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी इजराइल और अमेरिका है, पहले दिन से कहते आ रहा हूं। और अभी खबर आ रही है कि तैयब उर्दुगान, तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दुगान ने कहा है कि इजराइल ज़हनी तवाज़ुन खो बैठा है, यानी सादे ज़बान में कहें कि इजराइल पागल कुत्ता हो चुका है। जी हाँ, अमेरिका और इजराइल दोनों पागल कुत्तों का किरदार अदा कर रहे हैं। जैसे कावरेल कुत्ता खानदेशी में कहते हैं, जैसा काटता है, भौंकता है और किसी को भी पकड़ लेता है, ऐसे इजराइल और अमेरिकी आतंकवादी पागल कुत्तों की तरह मासूम बच्चों पर भी बमबारी और बरसा रहे हैं और गोलियां बरसा रहे हैं। शहर गजा में वहशियाना बमबारी को लेकर रजब तैयब उर्दुगान का सीधा बयान आया है कि इजराइल ज़हनी तवाज़ुन खो बैठा है, यानी इजराइल और अमेरिका पागल कुत्तों की तरह हो चुका है और मासूम पर भी बम बरसा रहा है। तुर्किया के सदर ने यह भी कहा है कि गजा के हजारों बच्चों की मौत को खामोशी से तमाम लोग देख रहे हैं, उनके साथ कल जो कुछ होगा इस पर कहने को कुछ नहीं बचेगा। काबीना इजलास के बाद एक बयान में उर्दुगान ने ये बातें कही है। वहीं पर मैं आपको कहूं कि इजरायली आतंकवाद पर दुनिया खामोश जो नजर आ रही है, यह सबसे बड़ा जुर्म है और सबसे बड़े मुजरिम तो पूरे अरब ममालिक और पूरे इस्लामी ममालिक बने हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि अरबों पर और उन तमाम इस्लामी मुल्कों पर हम थूकते हैं जो आज 1 महीना मुकम्मल होने के बावजूद भी पूरी तरीके से खामोश तमाशाई बने बैठे हैं। आपका पर्सनल डॉक्टर शावेद सेक्सोलॉजिस्ट, किसी भी सेक्स की प्रॉब्लम को लेकर आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको शुगर है, बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के आपका शुगर खत्म हो जाता है, बवासीर, खूनी हो या मस्से वाली हो, नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया भाई, अभी कांटेक्ट। बड़ी खबर इस वक्त इंडोनेशिया से आ रही है। जी हाँ, खबर है कि इलेक्शन में, इंतखाबात में हमलों की मनसूबाबंदी के इल्जाम में 59 मुसल्लह अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार होने वालों में से 19 का ताल्लुक जमात इस्लामिया से और 40 का ताल्लुक जमात इंशरातुद्दौला से बताया जा रहा है। इंडोनेशिया की इंसदादी दहशतगर्दी टास्क फोर्स के तर्जुमान ने कहा है कि जमात इंशरातुद्दौला के जंगजू 14 फरवरी को मुल्क में होने वाले सदारती और पार्लिमानी इलेक्शन के दौरान हमले की मंसूबाबंदी कर रहे थे। तर्जुमान ने कहा कि मुसल्लह अफराद के करीब इंतखाबात गैर अखलाकी और इस्लामी कवानीन के खिलाफ है। तर्जुमान ने कहा कि मुसल्लह अफराद ने पुलिस मराकिज पर हमला करने का मंसूबा बनाया है और ये उनके अहम मकसद से मुंसलिक है कि इंतखाबात मुलतवी किए जाएं। उन्होंने मजीद ये भी कहा कि मुलजमान को 2 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक होने वाले ऑपरेशन में गिरफ्तार किया गया है और पुलिस ने उनके पास से असलहा और बम बनाने का मवाद भी बरामद कर लिया है। ख्याल रहे कि इंडोनेशिया दुनिया में सबसे ज्यादा मुसलमान आबादी वाला मुल्क है, जहां 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में होने वाले हमलों और 2002 में बाली के जजीरे पर होने वाली बमबारी के बाद से मुसल्लह हमलों में इजाफा देखा गया है।
मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें, जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। एक बड़ी खबर आ रही है। आप जानते हैं कि अमेरिका और इजराइल जो सबसे बड़े आतंकवादी है, वो लगातार गजा और फलस्तीन पर हमले कर रहे हैं, मासूमों की जानें ले रहे हैं। लेकिन कमाल की बात यह भी है कि हमास और मुजाहिरीन की तंजीम अब तक रुकने और थमने का नाम नहीं ले रही है। उनका खुला ऐलान है कि हम या तो शहीद हो जाएंगे या फतह हमारा मुकद्दर होगी। इस वक्त खबरें यह भी आ रही है कि गजा में मजीद 9 इजराइली फौजी मारे गए हैं। गजा में लड़ाई के दौरान मजीद 9 इजराइली फौजी मारे गए। इजराइली फौज के मुताबिक शिमाली गजा में हमास के साथ लड़ाई में मजीद 9 फौजी हलाक हुए हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक गजा में जमीनी कार्रवाई के दौरान अब तक 11 इजराइली फौजी मारे जा चुके हैं, जबकि 7 अक्टूबर से अब तक 350 से ज्यादा इजराइली फौजी मारे जा चुके हैं। दूसरी जानिब इजराइली फौज ने हमास कमांडर इब्राहिम को शहीद करने का दावा किया है। इजराइली फौज के मुताबिक हमास के सेंट्रल जबालिया बटालियन के कमांडर को फजाई हमले में शहीद किया गया है। अरब मीडिया के मुताबिक हमास ने इब्राहिम को शहीद किए जाने की तस्दीक नहीं की है। आखिरी बड़ी खबर इस वक्त आ रही है सऊदी अरब से। जी हाँ, सऊदी अरब में अब तमाम सरकारी काम, सरकारी उमूर ईसावी कैलेंडर के मुताबिक अंजाम दिए जाएंगे। यानी अब जनवरी, फरवरी, दिसंबर, इस एतबार से वहां पर सारे गवर्नमेंट ऑफिसेस के जितने उमूर है, छुट्टियां वगैरह जो भी है, वो सब ईसवी कैलेंडर के मुताबिक अंजाम पाएंगे। यानी अब आप समझ सकते हैं कि सऊदी अरब पूरी तरीके से यहूदी, इजरायली, सहयूनी और अमरीकी या अंग्रेजी ढाल में ढल चुका है। वो आपने कहावत सुनी होगी कि कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भूल गया। वैसे भी सऊदी अरब अब इंतहाई बदनाम होता जा रहा है। जिस तरीके से 3 दिन पहले सऊदी अरब ने नंगा नाच किया है रियाद में, जिस तरीके से सऊदी हुकूमत ने एंटरटेनमेंट के नाम पर जो नंगा नाच किया है, पूरी दुनिया सऊदी अरब पर थूक रही है। क्योंकि एक तरफ फलस्तीन में मासूम मुसलमानों का, अहले ईमान का, मासूम बच्चों का खून बह रहा है, और दूसरी तरफ सऊदी अरब में नाच गाने और रक्स सुरूद की महफिलें सज रही है। इसको लेकर पूरी दुनिया ने सऊदी अरब पर थूका है। और अभी एक बड़ी खबर आ रही है कि सऊदी अरब अब हिजरी साल और हिजरी महीनों को छोड़कर अब यहूदी, इजरायली और अमरीकी यानी अंग्रेजी महीनों के तरफ बढ़ चुका है। और सऊदी अरब में अब तमाम सरकारी काम ईसवी कैलेंडर के मुताबिक अंजाम पाएंगे।